thank you for joining us on This Is Exclusive. It's 7 p.m., ladies and gentlemen, and a story that we broke here on Republic TV on Sunday. That's the first time we heard about the Nikki murder case, in which you can see a 28-year-old woman called Nikki being set ablaze inside her residence. Now, in the last 3 days, there have been many twists and turns in that story. Today, we're getting you some of the other details that are emerging, including FIRs that have been filed, which question the narrative so far. We're putting the facts out on the show. Here are the headlines. Twist after twist, more family members coming forward, questioning the claim made. Does something not add up in the story? There's a counter dowry charge against Nikki's family now. Her sister-in-law now claims that she was harassed, tortured, attacked for not giving dowry. Questions over Nikki's sister Kanchan, the first one to come out and claim that it was Vipin, the husband, who set her ablaze. Police say that some of what she has said don't add up. They claim that they haven't been able to record her statement for some reason yet. And as India stands up to global bully Trump, his administration softening up in the last few hours. Trade Secretary of America now speaking in a different tone all of a sudden. And on the story this evening, ladies and gentlemen, we're just putting out all the different angles to the story of Nikki. A story of unimaginable tragedy, tangled in many allegations, counter-allegations, and questions that remain unanswered in the National Capital Region. Now, the death of 26-year-old Nikki Bhatti raised questions on the truth behind her final moments. Now, in the latest, an FIR has been accessed by Republic TV. This is from June 2024, which now accuses Nikki's own brother of assaulting his estranged wife. A counter dowry charge against Nikki's own family. Here's how the story is playing out this evening. A young woman's life cut short in the most horrifying way. Nikki Bhatti engulfed in flames inside her home in Greater Noida. Her death has now triggered a storm of allegations and counter-allegations. According to Nikki's parents, she was brutally beaten and set ablaze by her husband Vipin Bhatti and his family. They also allege that years of dowry harassment finally became the flashpoint in Nikki's death. बहुत देखी भी होगी तुमने, पीढ़ियाँ पिटाई तो उसकी रोज की डेली की पिटाई थी उसकी। बेटी की पूरी काया भी तोड़ के धर दी। वहाँ पे जो परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनका कहना है कि निक्की ने सुसाइड किया है। डाउरी का कोई मसला नहीं है, पिछले 10 सालों से साथ थी शादी के बाद, लेकिन डाउरी का कोई ऐसा मसला नहीं, दहेज का मसला नहीं। सुसाइड करती तो कमरे में करती, निक्की भगती आग लगा के तुम सुसाइड करोगे तो कमरा बंद करके करोगे, बाहर भागोगे तुम। मेहमान ने बड़ी पिटिया की थी, छोटे ने छोटी की थी एक दिन पहले, और जिस दिन आग लगाई है उन तीनों चारों का हाथ आग लगाने में, आग लगा के तो ऊपर के खिड़की कूद के भाग जाना। Nikki's grieving parents demand justice, saying Vipin's house should be bulldozed as punishment for what they call a planned murder. But CCTV footage reveals another angle. At 5:41 p.m. on the fateful day, Vipin Bhatti was seen standing outside his house. The footage raises more questions about the exact sequence of events, as Nikki's sister Kanchan claims that Nikki was assaulted at 5:45 p.m.
Unapologetic and defiant, Vipin has no remorse for what he did, denying all allegations. कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। And now, a new twist has emerged in Nikki's story. An FIR from June 2024 has surfaced, naming Nikki's brother Rohit Paila as accused of assaulting Nikki's sister-in-law, Meenakshi Bhati. Meenakshi's allegations against Nikki's family turns the case against Nikki's brother. मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। बाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे, तो 6 महीने के लिए पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। At the very core of this brazen incident, one haunting question remains. How did Nikki Bhati really die? Was it a cold-blooded murder, an accident, or a tragedy buried under layers of conflicting claims? Now, there is a lot of reactions, many reactions that came in across the country to this story, but there are many aspects just in the last 24 hours. Republic has now accessed this video, which raises questions on Nikki's family itself. They now face a dowry charge. There is a video that is added to the murder twist. Let's play out that video. This alleged video is from 2024, when Nikki's family allegedly attacked her sister-in-law, Meenakshi Bhati. You just heard her version. In that story, there is a video. I'd like to play that video of a counter dowry charge. Now, the allegation so far has been Nikki faced harassment for dowry and that she was set ablaze. Now, in the middle of this, has emerged another video. And in this video, there is a little bit of ambience as well. Now, the allegation, and this video has been circulated by the family of Meenakshi Bhati. Meenakshi is the sister-in-law, Nikki's brother's estranged wife, who's now joining us live, Nikki Bhati. Namaste. आपको मेरी आवाज आ रही है? मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? मीनाक्षी जी? हाँ जी आ रही है। अच्छा, okay. And that's her brother also joining in. That's Rohit, I think. Rohit and Meenakshi are joining us. ये बताइए, आपने आज मीडिया से बातचीत की थी और मैंने सुना आपने क्या बताया। आप बोल रहे कि आप पर भी दबाव था, दहेज का दबाव था, प्रेशर था आप पे निकी के फैमिली के साथ। हाँ। हाँ जी। ये आपका शादी कब हुआ था रोहित के साथ? 2016 में 16 तारीख को। ओके। और कितना दहेज मांगा था आपसे? मुझसे दहेज मांगा था उन्होंने। दहेज की मांग गाड़ी की करी थी उन्होंने। स्कॉर्पियो गाड़ी मांगी थी मुझसे। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, उसके बाद जब पापा जी ने आज गाड़ी दे दी तो मेरे साथ मारपीट करने लगे कि स्कॉर्पियो गाड़ी क्यों नहीं दी। अच्छा, उनको क्या चाहिए था? उनको दहेज के भूखे थे, वो दहेज चाहिए था उन्होंने और भी ज्यादा। अच्छी खासी शादी करी थी मेरे पापा ने मेरी। कितने ये अभी 2016 में हुआ और ये कितने दिन के लिए चल रहा था ये? हाँ जी। मारपीट कितने दिन के लिए चला? ये शादी से 1-1.5 महीने बाद से ही चल रही थी।
दहेज के ऊपर। और आपने ये जो एक वीडियो अभी अभी हमने दिखाए हमारे दर्शकों को, आई थिंक रोहित भी है, आपका भाई रोहित भी है आपके साथ। ये जो वीडियो है, ये जो मारपीट हुई है, ये कब हुआ था? हाँ ये जी। कौन है ये वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं रोहित? ये भाई है मेरे। हाँ जी। ये जो वीडियो है, वीडियो में कौन कौन है? ये वीडियो में कौन कौन है और क्या हुआ था? ये वीडियो में जो मारपीट दिख रही है यहाँ पे, उसमें हमारे भाई हैं। अच्छा। भाई है और चाचा ताऊ हैं जिनके साथ मारपीट की गई थी और गोली भी फायरिंग की थी। गोली कौन चलाया था? रोहित पायला ने गोली चलाई थी। रोहित पायला ने गोली ये चलाई रोहित थी। पायला कौन है? रोहित पायला निक्की के भाई है। ये निक्की के ब्रदर। निक्की के फैमिली है, निक्की के भाई है, ये निक्की के ब्रदर। जी जी बिल्कुल। उन्होंने गोली चलाया था। बिल्कुल। और उस पे केस भी दर्ज हुआ है, 307 लगी हुई है उस पे। वो करीबन 2 हफ्ते वो जेल में भी रह के आया था। अच्छा। और एक एफआईआर भी फाइल हुआ था, आपने दर्ज की थी, कंप्लेंट दर्ज की थी आपने पुलिस के साथ। मीनाक्षी जी से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा उनका दे दीजिए माइक दे दीजिए उनको। आपने एफआईआर दर्ज की हाँ थी जी। मीनाक्षी जी? हाँ जी, मैंने अपना केस कोर्ट में भी डाला था, एफआईआर भी की थी दहेज का। और ये कितने साल चला? ये जो चला कितने साल तक चला ये, और आपने क्या किया उसके बारे में? दहेज का केस तो मेरा 1 साल के करीब चला था, फिर वो समझौता करके मुझे 4 आदमियों में लेके चले गए। और अभी जो हुआ है, जो भी हुआ है, मैंने सुना आपने क्या बताया था, क्या बोला था मीडिया के सामने? आपने ये बताया था कि उनके तरफ से भी बहुत सारा दबाव आया था आपके ऊपर। इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या पता है कि क्या हुआ उस घर में? आप क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में? घर के अंदर क्या हुआ निक्की के साथ? निक्की के साथ वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। निक्की के साथ जो हो रहा है, वहां पर जो दोषी विपिन को बताया जा रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा। आप बोल रहे थे वो थे ही उसमें नहीं वहां बहन पे। उसके ऊपर पानी नहीं डाल रही है, एक बोल रही है मिनट कि ये क्या- मीनाक्षी जी, आप बोल रहे थे कि विपिन था ही नहीं वहां पे। आपको कैसे पता कि वो नहीं है? वो वीडियो चलाएंगे हम अभी। वो वेयर शी इज बर्निंग, द मीनाक्षी बाटी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ निक्की। शी सेइंग दैट विपिन वाज नॉट इवन देयर। आप कैसे बता रहे हैं? आपको क्या पता है इसके बारे में? मैंने वीडियो में देखा है कि वो नीचे खड़ा है, इसलिए बोला है कि वो था ही नहीं वहां पर। ये रिकॉर्ड कौन कर रहा था? आपको जो इंफॉर्मेशन जानकारी मिली है, ये वीडियो को कौन रिकॉर्ड कर रहा था मीनाक्षी जी? कौन सी रिकॉर्डिंग? जिसमें निक्की जल रही है वो तो सोशल मीडिया पे फैली हुई। हाँ जी, वो तो सोशल मीडिया पे फैली हुई है, मैंने सोशल मीडिया पे देखी है। अच्छा। आपको कुछ बोलना है निक्की के फैमिली को? आई मीन निक्की के फैमिली ने भी इस चैनल पे आए थे और उन्होंने बताया कि बहुत दहेज का दबाव था उनके ऊपर। लगता नहीं था कि उन पे से दहेज मांगा जा रहा था। उन्हें देख के तो लगता नहीं था कि विपिन उनसे दहेज मांगता होता, ये उसके परिवार वाले उस पे दहेज मांगते थे। अब बहुत उनका सारे अपना बहुत कुछ है। हाँ जी, और वैसे भी उन्हें बिन मांगे, हाँ जी बताइए। उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल रहा था। तो आप ये बोल रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं? आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी। तो असली मामला क्या है यहाँ पे? क्या हुआ था वहां पे उसके घर के अंदर? उस घर के अंदर आपको पता है उस घर के मामले में क्या हुआ था उसके अंदर? नहीं, मुझे नहीं पता कि उस घर में क्या हुआ, लेकिन मैं जो वीडियो चल रही है उनके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। सब लोग पूछ रहे कि उसमें कंचन साफ कहाँ दिखाई दे है? रहा है कि विपिन नीचे खड़ा है। हाँ जी, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विपिन नीचे खड़ा है। हाँ जी बताइए। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विपिन नीचे खड़ा है।
सब लोग पूछ रहे कंचन कहाँ कंचन कहाँ ऊपर है? बहन के पास। अच्छा, मैं आपसे आपके भाई से पूछता हूँ कि ये जो कंचन के बारे में जो बातचीत चल रही है, क्योंकि उन्होंने मीडिया में आके बताया था कि मोहित से पूछना चाहता हूँ। मोहित, ये बताया गया था, कंचन भी हाँ जी। मीडिया को फेस हाँ जी, करके हाँ जी। बताया कि विपिन ने जलाया था, कि विपिन सेट निकी अब्लेज लाइटर के साथ। बेटा भी बोल रहा है, तो नहीं देखो, वीडियो से जाहिर लग रहा है बिल्कुल कि निक्की, उसने क्या नाम, विपिन ने ऐसा किया ही नहीं है। और उसमें कंचन भी साफ बोले कि निक्की तूने ये क्या कर लिया, ये तो साफ ही दिख रहा है। और विपिन के कपड़ों को देख के पता लग जाता है, अगर थोड़ी बहुत ऐसी आग लगती तो विपिन के कपड़ों में भी लगती थोड़ी बहुत। जैसी हमने वीडियो देखी है, विपिन तो बिल्कुल नीचे ही खड़ा है। तो आपका कहना क्या है? आपको क्या लगता है? आप परिवार हो, आपको उस फैमिली को आप जानते हो बहुत साल से, हाँ तो जी। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, उसने, लड़की ने जहाँ तक भी अपने आप ही आग लगाई है उसने। आप वीडियो आप देखते हो उनकी सोशल मीडिया पे, आपको लगता है क्या वो परेशान होगी? कोई भी एक वीडियो उनकी ऐसी है जिसमें वो दुखी दिख रही हो? लेकिन उनके परिवार बोल रहे हैं कि पापा और उनके फादर और वो तो- मदर ये बोल रहे हैं ना कि दहेज का दबाव था विपिन के फैमिली से। नहीं, दहेज का दबाव नहीं हो सकता। देखो, दहेज का दबाव तो हम पे था। हम 9 साल से परेशान चल रहे हैं। हमारी किसी ने अब तक आवाज नहीं सुनी। अच्छा, और ये आपने ये दहेज के मामले में आपने पुलिस को कंप्लेन किया था। आपने वो जो अटैक हुआ था उसके बारे में आप कंप्लेन किए थे, लेकिन ये जो दहेज का मामला है, दहेज का मामले पे क्या आपने एफआईआर फाइल किया था? क्या कंप्लेन फाइल की थी आपने? हाँ, अभी 3-4 साल पहले हमने कंप्लेंट करी थी, तो वो कोर्ट में केस डाला था। ये पंचायत को लेके आ गए, हाथ जोड़ के लेके चले गए। जो ये दहेज का केस होता है 7 साल तक डल सकता है, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि 7 साल ये हाथ जोड़ के लेके गए कि हम इस केस से कटवा के, फिर उन्होंने वही अपना रूल स्टार्ट कर दिया। अच्छा, और आपने केस किसके खिलाफ दर्ज की थी? हाँ। Who was the accused in the case? देखो, केस तो पूरी उसके रोहित के मम्मी पापा और रोहित के ऊपर ही था, क्योंकि वही बहन भी थी, ये भी टॉर्चर करती थी, साथ में पूरी फैमिली थी। कौन टॉर्चर कर रहा था? बहन? कौन सी बहन? 2 बहनें थे ना? ये दोनों ही कंचन निक्की दोनों ही परेशान करती थी। Okay, I'll leave it at that. Mohit and Meenakshi ji, thank you very much for speaking to Republic TV. Now, this is a completely bizarre, the kind of allegations that are now coming in. You have dowry allegations. Now, the family of Nikki, on the day of the murder, claimed that their daughter was killed and harassed for more dowry. Now, their own daughter-in-law, speaking to Republic TV, says she too was harassed, and there is an FIR to that effect, that not just harassed but also attacked for dowry by Nikki's parents. Now, overall, if you're looking at the story, the problem seems to be that of dowry. How much of dowry were they demanding? Now, there are much more details yet to emerge in the story, and we will keep reporting on that. Many more details that just don't add up at this point. We're just trying to put the pieces together. Thanks for watching. In the India Today Best Universities Survey,